Good morning, everyone. I welcome all of you to our new batches of CA Intermediate Costing starting from today. दोस्तों, इससे पहले कि हम costing subject की शुरुआत करें, let me first introduce myself to you. I am Praveen Khatod and I am a chartered accountant. I became CA back in year 2005, so it's been almost 19 to 20 years since I am a chartered accountant. When I became chartered accountant in year 2005, I was actually confused. What should I do in my life? I mean, should I go for CA practice? Should I go for job or should I go for teaching? Most of you must be thinking that sir chose teaching at that time, but no, I went for job. I worked at various places. I worked at Bangalore, I worked at Mumbai, and then I moved to America. There I worked for 2.5 years. And in year 2010, I came back to India. But before I came back to India, I pursued 2 more degree courses. One is CPA, Certified Public Accountant. We have CAs in India, they have CPAs in America. And one more degree course was CFA, Chartered Financial Analyst. It is considered as the topmost degree in the field of finance. So after taking all this educational qualification and taking required experience in corporates, I came back in year 2010, and since then I am into teaching field. I teach 2 subjects at CA intermediate level and 2 subjects at CA final level. At CA intermediate, as you all know, I teach costing as well as financial management. And at CA final level, I teach same 2 subjects. There they are named as Advanced Financial Management and SCMPE, Strategic Cost Management and Performance Evaluation. In addition to CA course, I also take classes for CFA level 1, 2 and 3. In between my career, starting career in the year 2011-12, I also taught MBA students as well. So that was, all about me. And now let's begin with our subject. Our subject is very interesting and this is costing. Okay. दोस्तों, अब हम यहाँ पर कॉस्टिंग ऑब्वियसली हम न्यू सिलेबस का पढ़ रहे हैं और आप में से कुछ स्टूडेंट्स सीए इंटरमीडिएट के होंगे, कुछ स्टूडेंट्स सीएमए के भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स दोनों चीज़ें साथ में कर रहे होंगे। खुशी की बात यह है कॉस्टिंग बिल्कुल सेम है सीए में और सीएमए में, यानी 95% ऑफ द थिंग्स आर सेम। सिर्फ एक टॉपिक सीए इंटर में ज़्यादा है और एक टॉपिक सीएमए में ज़्यादा है। तो हमारी ये जो क्लास है ये मल्टीपर्पज़ है, दोनों को टारगेट करेंगे, राइट। दोस्तों, दोनों का स्टडी मटेरियल भी लगभग सेम है, दोनों का एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चंस भी सारे के सारे सेम है। सीए इंस्टीट्यूट हमारा सीए में से कई बार क्वेश्चन ले लेता है एंड वाइस वर्सा भी होता है। इससे पहले कि दोस्तों हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें, थोड़ा सा मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहूँगा। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था? ऑलमोस्ट, ग्रेट, गजब। दोस्तों, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि सीए इंटरमीडिएट में रैंक लाने का इरादा रखते हैं? रैंक्स, आई नीड रैंक्स लाने का टारगेट है जिनका? ग्रेट, एंड इट्स मोर देन 50 to 60% ऑफ द पॉपुलेशन। ग्रेट। दोस्तों, एक रैंकर चार्टर्ड अकाउंटेंट में और एक नॉन रैंक चार्टर्ड अकाउंटेंट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक नॉर्मल जो सीए बनता है उसका पैकेज लगता है 10 से 12 lakhs, हकीकत। और जो रैंक से पास होता है उसका पैकेज लगता है अबाउट 25 lakhs। तो डबल का डिफरेंस तो डे 1 पर आ गया है। अगर किसी ने अपना करियर 12 लाख से स्टार्ट किया है वर्सेस किसी ने अपना करियर 25 लाख से स्टार्ट किया है, तो बताइए नेक्स्ट ईयर के अप्रेजल में क्या होगा? 12 lakhs will become 14-15 lakhs, but 25 lakhs at the same time will become 30 lakhs। और ये डबल का डिफरेंस ज़िंदगी भर चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि वो 12 lakhs वाला कम मेहनत कर रहा है और 25 lakh वाला ज़्यादा मेहनत कर रहा है, दोनों समय तो सेम ही देंगे। यू वुड ऑल्सो बी स्पेंडिंग 8 to 10 hours in your job, and the same guy, rank holder, would also be spending the same time, लेकिन वो अपने समय में डबल रिटर्न निकालेगा और सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं, ज़िंदगी भर निकालेगा। यानी सपोज कीजिए कि आप अपने करियर में अगर 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करेंगे तो वो उसी वक्त पे 20 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेगा। और समय के साथ साथ यूजुअली ये गैप बहुत बढ़ता चला जाता है क्योंकि उसके करियर प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा ब्राइट होंगे। अब ये जो रैंक काउंट होती है, काउंट तो सीए फाइनल की होती है, लेकिन सीए फाइनल में भी रैंक लगाने की उनकी ही प्रोबेबिलिटीज़ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट ज़्यादा होगी जिन्होंने सीए इंटरमीडिएट में रैंक स्कोर करी, फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट आपका बेस बनाता है, राइट। दोस्तों, रैंक का टारगेट होना ही चाहिए।
रैंक आ गई ना, मज़ा आ जाता है। मतलब जब जॉब प्लेसमेंट की बात आती है ना आईसीआई कैंपस की, तो जो नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं दे आर बेगिंग फॉर जॉब्स, बट रैंकर्स दे नेगोशिएट फॉर द सैलरी पैकेज। यानी सामने वाली कंपनी अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर कहती है कि आपका पैकेज हम 25 lakhs देंगे, तो रैंकर्स नेगोशिएट करते हैं, नो वी वांट 35 lakhs। तो ये नेगोशिएशन पावर आ जाती है रैंक के साथ, क्योंकि मुट्ठी भर रैंक्स लगती है सिर्फ पूरे भारतवर्ष में, करोड़ों की आबादी और सिर्फ 50 रैंक लग रही है, और ये रैंक ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। तो सभी रैंक के लिए एम ज़रूर करना। अच्छा, आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने हैंड्स तो रेस कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी छुपे रुस्तम होंगे जिनके रैंक लाने के इरादे होंगे लेकिन डिस्क्लोज नहीं कर रहे होंगे। ऐसे कौन कौन थे? अभी भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे। दोस्तों, अब अगर हमें रैंक लानी है तो आपको मालूम है कि हमें बड़े स्कोर के साथ मैच को जीतना है, और बड़े स्कोर के साथ मैच को जीतना है तो हमें एक दो ऐसे बल्लेबाज चाहिए अपनी टीम में जो कि बड़ा स्कोर खड़ा करे, मतलब जो शतक लगाए। और ये जो शतक वाले बल्लेबाज हैं ये हैं हमारे सब्जेक्ट्स, कॉस्टिंग और एफएम। आपके 3 सब्जेक्ट उस तरफ हैं, 3 सब्जेक्ट इस तरफ हैं। ग्रुप 1, आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने ग्रुप 1 की क्लासेस कर ली है, तो ग्रुप 1 में आपका एक सब्जेक्ट आता है अकाउंट्स। अब अकाउंट्स जब फाउंडेशन का स्टूडेंट सुनता है तो उसको लगता है वाओ, वापस से अगेन 100 मार्क्स का मेरा पूरा प्रैक्टिकल आएगा, लेकिन हकीकत कुछ और निकलती है। यहाँ पर आ जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो थोड़े सरदर्द बन जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी देर में घूम जाते हैं, कभी क्या एडजस्टमेंट बताते हैं, कभी क्या, दे आर ट्रिकी, राइट। सो अकाउंट्स के पेपर में क्या आप 100 में से 100 स्कोर ला सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इफ नॉट इम्पॉसिबल। पहले हुआ करता था पॉसिबल, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आने के बाद अकाउंट्स उतना स्कोरिंग वाकई में नहीं रह गया है। ऑडिट में आप 100 लेकर आएंगे क्या ऑडिट में 100 लाना पॉसिबल है? nobody can think of this, right? मतलब उसमें तो ऐसा कहते हैं कि एग्जामिशन भी बड़ी बात है, और इनफैक्ट कई बार ऐसी भी नौबत आती है, अगर आपने अपने सीनियर्स से बात करी होगी, कि सारे सब्जेक्ट्स पास है, बस दिक्कत सिर्फ कहाँ पर आ गई? ऑडिट में। यानी ऑडिट में ऐसा हो जाता है कि यार 40 आ जाए ना भगवान, तो मैं बस पास हो जाऊंगा, मेरा ग्रुप निकल जाएगा, 40 आ जाए, ये नौबत आ जाती है। तो क्या ऑडिट स्कोरिंग हुआ? एंड सेम गोज विथ लॉ में भी हम बड़ा स्कोर क्रिएट नहीं कर सकते, और ठीक है, उसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो थ्योरी है, तो थ्योरी का इनहेरिटेंट नेचर होता है कि उनमें स्कोर कम ही आता है। आते हैं दोस्तों ग्रुप 2 पर। ग्रुप 2 में हमारा सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग 100 में से 100 ला पाना पॉसिबल है। स्क्रीन पर दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ फ्लैश करना चाहूँ, दोस्तों कॉस्टिंग में 97 मार्क्स आए हैं। अपनी वन ऑफ द स्टूडेंट है, 97 मार्क्स शी हैज स्कोर्ड। नाउ यू कैन सी दोस्तों, इसको देखकर हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और अब आपको 97 नहीं लाना है, अब आपको 97 से ज्यादा लाना है। इनफैक्ट यू हैव टू टारगेट 100 आउट ऑफ 100 इन कॉस्टिंग। दोस्तों ये तो एक एग्जाम्पल है, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। देखिए कितने सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने कितने अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, और ये सिर्फ एक सिंगल अटेम्प्ट की कहानी। हर अटेम्प्ट में बच्चे कॉस्टिंग में अच्छा खासा स्कोर क्रिएट करते हैं। दोस्तों वन ऑफ आवर स्टूडेंट, शी हैज स्कोर्ड 97 मार्क्स इन कॉस्टिंग। 97 marks in costing. You cannot imagine 97 marks in accounts, audit, law, DTIDT. No, 97 marks can be scored only in costing. और 97 तो मुझे अब लग रहा है कि थोड़ा छोटा स्कोर है। कितना स्कोर करना चाहिए था? 100 में से 100, क्योंकि कॉस्टिंग का पूरा पेपर प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है। जैसे आपका मैथ्स का पेपर होता है या फाउंडेशन में अकाउंट्स का पेपर होता है जो कि ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल होता है, वैसा पूरा प्रैक्टिकल पेपर कॉस्टिंग का बनाया जा सकता है। थ्योरी का एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, अगर आपका प्रैक्टिकल मजबूत है तो थ्योरी को छोड़ दो, और थ्योरी का एक छोटा मोटा 4-5 नंबर का क्वेश्चन इन प्रैक्टिकल्स के साथ आता है। यानी 100 में से 95-96 मार्क्स तो मिनिमम प्रैक्टिकल आता है, जिसमें फुल ऑन फुल स्कोर किया जा सकता है। लेकिन फुल ऑन फुल स्कोर करने के लिए 2 जगह से 100% की ज़रूरत है। मैं तो मेरा 100% देने के लिए तैयार हूं, आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, 100% कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, पूरा कवरेज करेंगे इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपीज, पास एग्जाम पेपर्स, एवरीथिंग मैं 100% कवर करूंगा। नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी। क्या आप अपना 100% देने के लिए तैयार हैं?
क्या आप 100% देने के लिए तैयार हैं? दोस्तों फिर 100 मार्क्स का टारगेट रखेंगे हम कॉस्टिंग में, और जब हम 100 मार्क्स का टारगेट रखेंगे कॉस्टिंग में तो हमारा पढ़ने का नजरिया ही बदल जाएगा। एक 50 नंबर वाला बच्चा अलग ढंग से पढ़ता है, वो कैजुअल तरीके से पढ़ता है कि आया समझ में तो ठीक है, और नहीं भी आया तो कौन से मुझे पूरे में से पूरे लाने। लेकिन अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लेते हो ना यार, मज़ा आ जाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया पे यूं ही नाम हो जाएगा हमारा। रैंक्स देखो सबकी नहीं आ सकती है ना, वी विल टारगेट फॉर रैंक, बट ऑब्वियसली देयर आर ओनली 50 रैंक्स। लेकिन 100 आउट ऑफ 100 में कोई कोटा नहीं है 50 का। हर बच्चा 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है, ऐसे रोक नहीं सकता है। 100 आउट ऑफ 100 लाए जा चुके हैं कॉस्टिंग में, और ऐसे मार्क्स आते हैं। दूसरी बात, ये जो अपने दो सब्जेक्ट्स हैं कॉस्टिंग और एफएम, दोनों ही प्रैक्टिकल है, दोनों मिलाकर होते हैं 150। 600 में से 150 मार्क्स हमारे पास है और वो प्रैक्टिकल है, और उसमें हम 100% कवरेज करेंगे। मैं अपना 100% दूंगा और आप अपना 100% देंगे। इस 150 में जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको कर लेना, क्योंकि जो बचे हुए 450 है ना, उनका ज़्यादा भरोसा नहीं है। उसमें से 100 मार्क्स आ गए ऑडिट वालों के, 100 मार्क्स आ गए लॉ वालों के, 50 मार्क्स आ गए उधर एसएम वालों के। ये 3 तो हो गए प्योर थ्योरी, और प्योर थ्योरी से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना मत। फिर इसके बाद आते हैं डीटी और आईडीटी, जिसमें आपको पता चला होगा कि डीटी ठीक है कई बार पढ़ते वक्त समझ में आता है, लेकिन डीटी आईसीआई पेपर ऐसा घुमाता है कि कई बार अनइमेजिनेबल सिचुएशन हो जाती है कि यार सब पढ़ के तो गए थे लेकिन आखिर क्या हो गया। ऐसा होता है डीटी में, है ना। बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि डीटी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर एरिया है और आईसीआई उसको टफ पूछता है। आपने अगर अपने सीनियर्स से बात करी होगी तो पता चला होगा कि डीटी आईडीटी उतना स्कोरिंग नहीं, जिसमें खास करके डीटी उतना स्कोरिंग नहीं है। ले देकर दोस्तों आपके पास 3 ही सब्जेक्ट्स बचते हैं, कॉस्टिंग, एफएम और अकाउंट्स, और अकाउंट्स के अंदर भी आ गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ले देकर जो आपका एग्रीगेट आपको क्रिएट करना है, बड़ा स्कोर आपको खड़ा करना है, वो सिर्फ और सिर्फ यही 2 सब्जेक्ट से आ रहा है। कहाँ से? कॉस्टिंग से और एफएम से। तो इसको दिल लगाकर पढ़ेंगे, 100 में से 100 का टारगेट रखेंगे, 90 से ऊपर हर बच्चा लाने की कोशिश करेगा, है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं जो समझाऊँ वो आपको आएगा तो सही समझ में, ऐसा मुझे लगता है। नहीं आए तो इमीडिएटली आप पूछ लेना, मुझे कॉन्सेप्ट रिपीट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। उल्टा मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आपने अगर डाउट पूछा तो। वैसे मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको डाउट ही ना आए, या आपके डाउट आने से पहले ही मैं उस डाउट को यहाँ पर खुद से ही बोल दूँ और उसका जवाब दे दूँ। दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर कॉस्टिंग की पढ़ाई करेंगे। सबका टारगेट सेट है 100 में से 100, और ऐसा हो चुका है, वो एक्चुअली स्क्रीन पर अभी आया नहीं, लेकिन हाँ 100 में से 100 लाना है। दोस्तों अब हम यहाँ पर पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम कॉस्टिंग पढ़े, सबसे पहले इसको पढ़ने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आज हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं कॉस्टिंग पढ़ने के लिए। मतलब अदर देन की हमारे सिलेबस का हिस्सा है, मार्क्स लाने, पास होना है, आखिर कॉस्टिंग क्यों पढ़ते हैं रियल लाइफ में? बताओ यार, कॉस्टिंग क्यों पढ़ते हैं? बताओ, आप बता भी दोगे। वेरी गुड। सबसे पहला ये कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम उसकी कॉस्ट डिटरमाइन कर सकें। सपोज करो कि ये सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल को बना रही है, सो इट नीड्स टू सेल दिस सेल, और इसको अगर इसको बेचना है तो उसको अपनी सेलिंग प्राइस तय करनी पड़ेगी, और सेलिंग प्राइस डिपेंड्स ऑन कॉस्ट, राइट। वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट। अब कॉस्ट आखिर कितनी लगी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्टिंग को पढ़ने का, कॉस्ट डिटर्मिनेशन। वी आर एबल टू डिटरमाइन द कॉस्ट, ठीक है। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते होंगे? क्या सिर्फ कॉस्ट का कैलकुलेशन करना ही इस सब्जेक्ट का एकमात्र उद्देश्य है, या और भी कई उद्देश्य होंगे? वेरी गुड, कितनी सही बात बोली इन्होंने। यानी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो मैंने अभी डिस्कस करा, दैट इज कॉस्ट डिटर्मिनेशन, बट द अनदर ऑब्जेक्टिव टू स्टडी कॉस्टिंग सब्जेक्ट इज कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। और ये बहुत सुपीरियर ऑब्जेक्टिव है आज की तारीख में। कंपटीशन का ज़माना है, जोमेटो और स्विगी एक दूसरे के साथ नेक टू नेक कंपटीशन कर रहे हैं। उधर पेंटालून्स ज़ूडियो के साथ, वेबसाइट के साथ नेक टू नेक कंपटीशन कर रहा है। जियो, एयरटेल, देयर इज़ अ फियर्स कंपटीशन। मतलब हर जगह पर। बताइए कंपटीशन कहाँ नहीं है? मोनोपोली सिर्फ किताबों में रह गई है, देयर इज़ नो मोनोपोली।
सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है आज के ज़माने में, और कट थ्रोट कंपटीशन है, फियर्स कंपटीशन। इस फियर्स कंपटीशन के ज़माने में जीतने के लिए दो काम करना ज़रूरी है। एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, दैट टू एट द चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस। मैं आपको कॉस्टिंग अच्छा पढ़ाऊंगा बट मेरी फीस 1 लाख रुपए है। तो आप समझ गए, मतलब आपको दो काम एक साथ करने पड़ेंगे। यू हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट बट दैट टू एट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेट्स। इज दैट क्लियर? दोस्तों, एक बार की बात है, एक इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो कार बनाती थी और उसका कार का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था वो था 7 लाख रुपीज़, और उस कार को वो सेल करती थी 8 लाख रुपीज़ में, यानी कि 1 लाख रुपीज़ का क्लियर कट प्रॉफिट था। 1 लाख रुपीज़ ऑन सेलिंग द कार। वन फाइन डे एक फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इंडिया में कदम रखा, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करा। उन्होंने बिल्कुल वैसी की वैसी कार, मतलब सेम इंजन की कैपेसिटी, सेम फीचर्स, काइंड ऑफ सिमिलर लुक्स, उन्होंने मार्केट में वो मॉडल उतार दिया 7,40,000 रुपीज़ में। अच्छा, वो जो फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने सेम कार दे दी है जो आज तक आप कितने में सेल कर रहे थे, 8 लाख रुपीज़ में सेल कर रहे थे, और वही सेम चीज़ आपको 7,40,000 में मिल गई है। अच्छा, कस्टमर जाएगा, टेस्ट ड्राइव लेगा, पहली कार की, इंडिया वाली कार की टेस्ट ड्राइव लेगा, फॉरेन ब्रांड वाली कार की टेस्ट ड्राइव लेगा, हिल से यार सब कुछ तो सेम है, और ये कार जब मुझे 7,40,000 में मिल रही तो फिर वो कार मैं 8 लाख रुपीज़ में आखिर क्यों लूँ? ऑब्वियसली कस्टमर उस तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। अब अपने मार्केट शेयर को डिफेंड करने के लिए बताइए ये इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या करना ही पड़ेगा? इसको यहाँ पर अपनी सेलिंग प्राइस कम करनी ही पड़ेगी, यानी 8 लाख रुपीज़ की जगह कार को 7,40,000 में देना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, पहले 1 लाख रुपीज़ पर कार कमाते थे जब कंपटीशन नहीं थी, अब कितने कमा रहे हैं दोस्त? 40,000 रुपीज़ हम पर कार कमा रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट मार्केट शेयर हमने डिफेंड कर लिया, हमारा मार्केट शेयर हमने प्रोटेक्ट कर लिया। दोस्तों, 1-2 महीने बीते नहीं कि ये जो फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने प्राइजेस और क्रैश कर दी, और अब प्राइस इन्होंने कर दी 7 लाख रुपीज़। यानी अपनी इंडिया की कंपनी की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी है? 7 लाख रुपीज़, और सेलिंग प्राइस 8 लाख थी जो गिरकर हो गई 7,40,000। और उधर फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जितनी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उतने में तो वो कार सेल कर रही है 7 लाख रुपीज़ में। अभी हमारा प्राइस टैग 7,40,000 है। झक मार के हमें इस 7,40,000 को गिराकर 7 लाख पर लाना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे हमारा मार्केट शेयर इरोड होता चला जाएगा और कॉम्पिटिटर पैर जमा लेगा। जैसे रिलायंस जियो ने पिछले कुछ सालों में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और न जाने अनगिनत कितनी कंपनी थी, सबसे मार्केट शेयर छीन कर पैर जमा लिया। अब इस कंपनी को रोकने के लिए अपनी डोमेस्टिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भी प्राइस कितना कर दिया? 7 लाख। कोई बात नहीं, 2 पैसे कमाएंगे नहीं तो कोई बात नहीं, पर 2 पैसे गंवा भी तो नहीं रहे अभी, और प्लस हम अपना मार्केट शेयर प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बार उसने पैर जमा लिए तो फिर वो गले की हड्डी बन जाएगा, छोड़ेगा नहीं हमें, राइट? दोस्तों, हमने भी 7 लाख रुपीज़ का प्राइस टैग रख दिया, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन। 1 महीने बाद उन्होंने प्राइस गिराकर, फॉरेन वालों ने 6,75,000 कर दी। अब हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम 7 लाख पर ही रुक जाएं, पर 7 लाख पर रुकना का मतलब है कि अपना मार्केट शेयर कॉम्पिटिटर को दे देना, और दूसरा रास्ता है कि 6,75,000 कर दो, जिसका इम्प्लाइड मीनिंग है ऑन सेलिंग एवरी कार देयर विल बी ए लॉस ऑफ 25,000 रुपीज़। यानी एक कार बेचते हो खुशी नहीं होगी, गम होगा, गए 25,000, वो एक और कार गई, गए और गए 25,000 और गए, मतलब जितनी कार बिकी मल्टीप्लाई बाय 25,000, इतने का प्रॉफिट नहीं, इतने का लॉस। कंपनी ने कहा हाउ कम इट इज़ पॉसिबल, हम बना रहे हैं 7 लाख में और वो लोग बेच रहे हैं, बना नहीं, वो लोग बेच रहे हैं 6,75,000 में। कंपनी ने अपने कुछ एजेंट्स वहाँ पर भेजे, तहकीकात करके आओ कि आखिर ये हो क्या रहा है, और तब पता चला दे आर एन एफिशिएंट प्रोड्यूसर। वो कौन है? वो एक एफिशिएंट प्रोड्यूसर है, वो कार को एफिशिएंट ढंग से प्रोड्यूस कर रहे हैं।
एडवांस्ड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन करने की, उनका जो आउटपुट जनरेट हो रहा है पर 1 आवर ऑफ लेबर वो ज़्यादा जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट टू प्रोड्यूस कम है, एंड देयर कॉस्ट टू प्रोड्यूस इज जस्ट 6 लाख रुपीज. सो व्हेन दे आर एबल टू प्रोड्यूस 6 lakh and they are selling at 6,75,000, they are making a profit of 75,000 per car. But you being an inefficient producer, you are producing at 7 lakh rupees. क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे ऐसे? आज के कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में सर्वाइव अगर बिजनेस को करना है ना, तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव तो होना ही पड़ेगा. और यही हमारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, वो सिखाता है कि कॉस्ट रिडक्शन या फिर कॉस्ट कंट्रोल आखिर कैसे किया जाता है. दोस्तों शायद आपने एक स्टोरी सुन रखी होगी, एक बार फिर से सुनाने का मन करता है, जिससे कि कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक्स आपको पता चलेंगी. एक अमेरिकन एयरलाइंस कंपनी हुआ करती थी एंड इट वाज रनिंग इनटू लॉसेस. अमेरिकन एयरलाइंस कंपनी, राइट. ये स्टोरी दोस्तों 1987 की, 1987, सो इट्स लाइक 40 ईयर्स बैक की बात है. तो मैं डेटा उस ज़माने का यूज़ करूँगा तो उतना अपडेटेड फील नहीं आएगा. मैं डेटा आज के इन्फ्लेटेड टर्म्स में आपके सामने रखूँगा, और ये एग्जाम्पल था ऑलिव्स का, लेकिन मैं उसकी जगह इंडियन सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए टोमेटो वर्ड में यूज़ करूँगा. ये एयरलाइंस कंपनी इट वाज मेकिंग लॉसेस, और आप में से बहुत सारों ने सुनी होगी शायद ये, है ना. दिस कंपनी वाज मेकिंग लॉसेस, लेकिन आपने इसका मैथमेटिक्स शायद सुना होगा, शायद नहीं भी सुना होगा. मैं मैथमेटिक्स के साथ रखता हूँ इसको. दोस्तों ये एयरलाइंस कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, और तब वो वहाँ पर सारे मैनेजमेंट के पीपल की एक मीटिंग बुलवाई गई ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कि हम अपने लॉसेस को कैसे कंटेन करें. हर कोई अपने अपने सजेशन देने लगे. तभी वहाँ पर एक लेडी ने वहाँ पर खड़े होकर सजेशन दिया, हमें जो भी हम मील्स सर्व कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मील्स तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्पिटिटर भी दे रहा है, लेकिन हम टोमेटो की एक स्लाइस कम कर लेंगे. विच मीन्स टिल नाउ वी वर सर्विंग 8 पीसेस ऑफ टोमेटोज, तो हम उसकी जगह सिर्फ कितने रखेंगे? 7. Everybody was laughing. यहाँ पर लाखों डॉलर्स के, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस को सेव करने की बात की जा रही है, एंड शी इज सेइंग कि सिर्फ एक टोमेटो का पीस हम कम कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा? देन शी टोल्ड कि इस पर्टिकुलर आइडिया से 2 बातें होंगी. सबसे पहला, हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिड्यूस नहीं होगा. दे सेड हाउ कम? हमने कहा सिंपल. आप लोग, दोस्तों आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग इसके पहले कभी पिछले 1 आध महीने में कभी रेस्टोरेंट गए होंगे आप, और रेस्टोरेंट में आपने सैलेड ऑर्डर करा, क्या आपने टोमेटो के पीसेस काउंट करे? नहीं. अच्छा, अब उस रेस्टोरेंट वाले ने अगर एक पीस कम भी कर लिया नेक्स्ट टाइम, बताइए आपको पता चलेगा क्या? इट इज़ नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन एनी काइंड ऑफ रिडक्शन इन योर सेटिस्फैक्शन. तो बस एक टोमेटो का स्लाइस हमें वहाँ से निकालना है. अब एक टोमेटो के स्लाइस की आखिर कॉस्ट हम कितनी सेव करेंगे वो देखते हैं, है ना. तो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, डॉलर्स में बात करेंगे. अब एक टोमेटो वहाँ पर आता है 50 सेंट्स का. 50 सेंट्स यानी $1/2, यानी कि 45 रुपीज़ का, ठीक है, या 40 रुपीज़ 45 रुपीज़ के आसपास, है ना. अब एक टोमेटो में आती है 5 स्लाइसेस, यानी कि $0.50 का एक टोमेटो है, उसमें 5 स्लाइसेस आ रही है, यानी $0.10 का एक पीस हो गया, यानी 10 सेंट्स बोलेंगे हम उसे, या $0.10 का एक पीस हो गया. यानी एक पीस हटा लेने से हमने $0.10 बचा लिए. देयर आर 250 पीपल सिटिंग इन दैट फ्लाइट. 250 लोग बैठे हुए उस फ्लाइट में, यानी कि हमने $0.10 मल्टीप्लाई बाय 250 पैसेंजर्स, वी हैव सेव $25 ऑन दैट फ्लाइट. वो फ्लाइट दिन में 4 बार राउंड लगाती है. $25 इंटू 4, $100. और इस कंपनी के 100 प्लेन्स हैं. 100 प्लेन्स हैं, होते हैं ना, जैसे इंडिगो एयरलाइंस के पास सिर्फ एक प्लेन थोड़ी ना है, सैकड़ों प्लेन्स. 100 प्लेन्स $100 पर पहुंच गए थे, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लेन्स. देयर इज अ सेविंग ऑफ $10,000 ऑन इन 1 डे एंड मल्टीप्लाई बाय 365 days. सो $10,000 इंटू 365 कितना होता होगा यार? $36,50,000, $36,50,000. अब इसको अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो रफली 30 करोड़ के आसपास आता है. जस्ट बाय टेकिंग आउट 1 पीस ऑफ टोमेटो यू आर सेविंग 30 करोड़ रुपीज़, $36,50,000. दैट्स अ मैजिक. अच्छा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन तो कहीं अफेक्ट, मतलब किसी को कानो कान खबर नहीं लगने देना है कि हमने एक पीस निकाला है.
अब आप सोचिए अगर एक पीस टोमेटो का कम कर लें, एक पीस अगर हम उधर क्यूकम्बर का कम कर लें और एक पीस अगर हम अनियन का कम कर लें, तो फिर इट रिजल्ट्स इनटू अ सेविंग ऑफ $1 मिलियन, जो कि लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास होता है। यानी ये होते हैं कॉस्ट रिडक्शन के आइडियाज़ और ये कंपनीज को लगाने पड़ते हैं इस कंपटीशन के ज़माने में सरवाइव करने के लिए। ऐसे ही कुछ आइडियाज़ दोस्तों हम हमारे सब्जेक्ट्स में भी डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट प्लस फाइनल में मिलाकर। सिर्फ ये 2 ऑब्जेक्टिव नहीं होते कॉस्टिंग को पढ़ने के, एक तीसरा ऑब्जेक्टिव भी होता है, एंड दैट इज व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, डिसीजन मेकिंग। कई बार कंपनीज को और कई बार क्या डेली बेसिस पर कंपनीज को कई सारे तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे जो परचेज मैनेजर होता है उसको डिसाइड करना पड़ता है कि मैं सप्लायर ए से गुड्स खरीदूं या फिर सप्लायर बी से। अच्छा, गुड्स खरीदने के बाद मैं उसे ट्रक से मंगवाऊं या फिर मैं उसे रेलवे से मंगवाऊं या फिर मैं उसे सी के रास्ते ट्रांसपोर्ट करवा लूं इफ दैट इज पॉसिबल। मैं खुद के ट्रक्स डिप्लॉय करूं या फिर थर्ड पार्टी ट्रक सर्विस प्रोवाइडर को मैं डिप्लॉय कर दूं। एक बार गुड्स आ गए उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैं ऑटोमेटिक मेथड्स यूज करूं या सेमी ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल, राइट, या फिर मैं खुद मैन्युफैक्चर करूं या फिर इसको थर्ड पार्टी को मैं आउटसोर्स कर दूं मैन्युफैक्चरिंग। उसी तरीके से एक बार कुछ बन गए उसकी मार्केटिंग आखिर मैं कैसे करूं। जैसे बाटा क्या करता है, बाटा खुद के स्टोर्स ओपन करता है, लेकिन बाकी जो कंपनीज होती है जैसे लिबर्टी हुआ, लखानी हुआ, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बाकी शॉप्स को सेल करते हैं। तो मार्केटिंग के भी वेरियस चैनल्स होते हैं, मैं आखिर किस चैनल से जाऊं, और ये सारे के सारे डिसीजन मेकिंग भी हमारे कॉस्टिंग का हिस्सा है। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ना, आप सीए बन गए, जॉब करने लगे, और अगर आप फैक्ट्री सिनेरियोज में जॉब कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में जॉब कर रहे हैं, आईटीसी में जॉब कर रहे हैं, तब तो ये काम में आता ही आता है। अगर आपने खुद का भी एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, खुद का भी अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना जिनका बिजनेस बैकग्राउंड भी तो होगा, राइट, तो वहाँ पर भी तो आपने देखा होगा कि फैमिली में कई बार ऐसी चर्चा होती है कि यार ये काम ऐसे करने की बजाय ऐसे कर लें तो किफ़ायती पड़ेगा, एंड सो ऑन, राइट। ये सारे डिसीजंस लेने में आपकी एबिलिटीज़ इंप्रूव होती है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने से। हम इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन से देखेंगे, एग्जाम तो ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाएगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, राइट। दोस्तों ये हैं 3 सब्जेक्ट्स हमारे कॉस्टिंग को पढ़ने के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, देन कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, एंड द थर्ड वन इज डिसीजन मेकिंग, राइट। सो ये था हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव। अब एक बार हम हमारा सिलेबस देख लेते हैं। कॉस्टिंग के सिलेबस का इंट्रोडक्शन अधूरा है तब तक जब तक मैं आपको फैक्ट्री के टूर पर नहीं ले जा पाऊँ। अब मैं यहाँ पर आपको एक वर्चुअल फैक्ट्री टूर करवाऊंगा। अच्छा, मैं करवाऊँ उससे पहले आप खुद ही सोचें कि फैक्ट्री के अंदर अगर आप विजिट कर रहे हैं, सपोज करो ब्रिटानिया बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसकी फैक्ट्री अगर आप विजिट कर रहे हैं, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दिखेगी। फैक्ट्री के मेन गेट से आप गए, क्या क्या दिखेगा आपको, मशीन्स दिखेंगी, वर्कर्स लेबर दिखेंगे, फैक्ट्री रॉ मटेरियल स्टोर दिखेगा, बड़ा सारा गोडाउन, इन्वेंट्री दिखेंगी फिनिश गुड्स की, काफ़ी सारे बिस्किट्स मैन्युफैक्चर, पैकेजिंग का मटेरियल दिखेगा, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ पर कुछ ट्रक्स भी खड़े हुए होंगे, राइट। ये और लॉरीज होंगी, कुछ मशीन्स होंगी जो कि यहाँ से वहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होंगे जो कि मटेरियल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे। दिस इज द काइंड ऑफ सिनेरियो दैट यू वुड सी इन ऑन योर फैक्ट्री टूर। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर फैक्ट्री टूर में हमें क्या नज़र आ रहा है। तो ये कुछ यहाँ पर मैंने फैक्ट्रीज बना दी है। अच्छा, ये आपको मालूम है कि मैन्युफैक्चरिंग सिंगल प्रोसेस में कंप्लीट नहीं होती, देर आर मल्टीपल प्रोसेसेस रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मारुति सुजुकी को कार मैन्युफैक्चर करना है तो बस एक जगह पर खड़े खड़े पूरी कार मैन्युफैक्चर नहीं हो जाएगी। इट हैज़ टू मूव ऑन द असेंबली लाइन। असेंबली लाइन पर कार मूव होती जाती है, एक स्टेप हुई, नेक्स्ट स्टेप दूसरा बंदा करेगा, दूसरे डिपार्टमेंट में करेगा, राइट। तो ये हो गई हमारी मैन्युफैक्चरिंग, राइट। इसी के साथ साथ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की भी बिल्डिंग है, कुछ लोग उधर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। दिस आर ट्रांसपोर्टेशन लॉरीज। ये इस तरफ जो आपको दिख रहा है वो रॉ मटेरियल का स्टोर है, यहाँ पर सप्लायर अपना रॉ मटेरियल आकर रखता है। और इसी के साथ साथ एक मिनट, क्या चेंज हुआ आपको नजर आया क्या आपकी पारखी नजरें देख पा रही है कि स्क्रीन पर कहां पर चेंज आ रहा है, कहां पर मूवमेंट है। देयर इज अ रॉ मटेरियल इन द रॉ मटेरियल स्टोर। अच्छा, फैक्ट्री के अंदर ध्यान से देखना, खिड़की के अंदर झांक कर आपको क्या नजर आया, वहां पर क्या आपको कुछ वर्कर्स नजर आ रहे हैं। मुझे सिंगल स्लाइड पर सब कुछ लेना था इसलिए चीजें छोटी हैं। रॉ मटेरियल जा रहा है दोस्तों किसके पास, फैक्ट्री वर्कर्स के पास। दे आर गोइंग टू प्रोसेस इट ऑन द मशीन। कैन यू सी, यहाँ पर आपको मशीन नज़र आ रही है। यहाँ पर मशीन पर दोस्तों गुड्स की प्रोसेसिंग हो रही है और ये गुड्स फिर प्रोसेस होकर बन जाते हैं फिनिश्ड
गुड्स, और ये फिनिश गुड्स फिर ट्रक्स के अंदर लोड होते हैं और कस्टमर के पास तक ये ट्रक्स जाते हैं, डिलीवरी करके आते हैं। दिस इज़ द एंटायर फैक्ट्री सिनेरियो। हमारा पूरा इंटरमीडिएट का सिलेबस इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। दोस्तों बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 14-15 चैप्टर्स के आसपास, अगर मैं इंट्रो वाले चैप्टर को भी इंक्लूड करूँ तो, और सारे चैप्टर्स इसी सीन के अराउंड घूमने वाले। बस हर चैप्टर में हम एक पर्टिकुलर पीस को जूम करके देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं 3 चैप्टर्स आपको बताता हूँ। ये 3 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, मटेरियल, लेबर या फिर एम्प्लॉय, और थर्ड इज ओवरहेड्स, राइट। मटेरियल यानी आप समझ रहे हैं क्या है, लेबर यानी कि भी आप समझ रहे हैं क्या है, और ओवरहेड्स भी शायद आपने सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स में वर्ड तो सुन रखा है। हर वो कॉस्ट जो ना मटेरियल है ना लेबर है, दे आर ओवरहेड्स, राइट। जैसे अगर मैं कोचिंग क्लास की बात करूँ तो जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, दे आर मटेरियल। आई एम द लेबर, मैं लेबर हूँ। और ये जो लाइट, बिजली, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ये सब क्या है? ये मटेरियल भी नहीं है, ये लेबर भी नहीं, देज आर ओवरहेड्स, राइट। और ये तीनों कंपोनेंट्स लगते हैं टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ठीक है, मटेरियल इज मटेरियल, उसमें पढ़ना क्या है? रॉ मटेरियल इज रॉ मटेरियल, उसमें पढ़ने लायक बात क्या है? लेबर इज लेबर, दे आर एम्प्लॉयज, वी पे देम सैलरी, दे वर्क फॉर द कंपनी, दे प्रोड्यूस द गुड्स। तो इसमें पढ़ना क्या है? ओवरहेड्स आर ओवरहेड्स, दे आर सिंपली एक्सपेंसेस। इसमें पढ़ना क्या? तो एक बार की बात थी आपका, हाँ थोड़े से समय पहले की बात थी, जब आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया। तो उस दिन को याद करना दोस्तों, जिस दिन आपका सीए फाउंडेशन की पास की मार्कशीट आई थी। आप इंटरनेट पे बैठे थे, सुबह 10-11 बजे के आसपास का समय था। शाम को आया था क्या रिजल्ट? शाम का समय था, 4-5 बजे के आसपास का। और कभी सुबह आता है रिजल्ट, कभी शाम को आता है। आपका शाम को आया था 4-5-6 बजे के आसपास, 8 बजे, ओके, रात को 8 बजे का वक्त था। दिल की धड़कनें तेज़ थी, पता नहीं था कि सक्सेसफुल प्रिंट होगा या अनसक्सेसफुल। थोड़े सहमे हुए हाथों से आपने अपना रोल नंबर डाला, फिर आपने उसमें अपना पासवर्ड डाला, और जिन भी भगवान को आप मानते हो उनका 2 से 3 बार, जितनी बार हो सके तहे दिल से आपने नाम लिया और लॉगिन कर दिया। रिजल्ट सक्सेसफुल, मज़ा आ गया। कुर्सी पे से उछल जाता है बंदा कि और पास हो गया हूँ मैं सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन आप जैसे ही पास हुआ, आपके ठीक पीछे मम्मी पापा खड़े हुए थे। मम्मी का हाथ इस कंधे पर था, पापा का हाथ इस कंधे पर था। वो आशीर्वाद के रूप में था कि तुम पास हो, हम पास हुए। जितनी खुशी हमें होती है उससे 2 गुना ज़्यादा खुशी उन्हें होती है। दोस्तों उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने ये खुशी की लहर चारों तरफ परिवार में, रिश्तेदारों में पहुंचा दी। सबसे पहले ऐसे ही होता है, फिर बुआ जी, फूफा साहब, मामा जी, बड़े पापा, चाचा, अंकल सबको फ़ोन करते हैं, चिंटू पास हो गया, चिंकी पास हो गई अपना। और हर तरफ खुशी की लहर। अपनी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इसके अंदर मार्कशीट, ये वो सारी चीज़ें, सेलिब्रेशन। अपन भी इधर कमी नहीं छोड़ते, अपन अपना व्हाट्सएप का स्टेटस, उधर इंस्टाग्राम की स्टोरी, लिंक्डइन बना रखा है तो वो, ट्विटर है तो वो, और चारों तरफ खुशी का माहौल। फिर सेकंड स्टेज पे नंबर आता है फैमिली के फ्रेंड्स का। तो आपके पापा के एक फ्रेंड हैं और वो मतलब उनका बिजनेस है अच्छा खासा, और उनका मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है। पापा ने उनको भी बताया, तो उन्होंने कहा अरे वाह यार, ये सीए कब बन रहा, अपना काम आगे इसी को संभालना है, अपना टैक्स का, ऑडिट का काम, जीएसटी का काम, सब इसको ही संभालना है यार, हमारा तो सीए उतना काम का है नहीं। तो उन्होंने कहा, पापा के फ्रेंड ने कहा कि यार एक दिन आओ ना, मिलते हैं अपन। तो पापा हमें लेकर एक दिन, संडे का दिन था, उनकी फैक्ट्री पर गए। और उनकी फैक्ट्री थी थोड़ा सा मतलब अपने शहर से 20-25 किलोमीटर दूर अंकल की फैक्ट्री थी। अपने पापा के फ्रेंड थे, अपन भी जानते बचपन से, अंकल की फैक्ट्री थी। अंकल की फैक्ट्री पर पापा और अपन गए। वहाँ पर अंकल ने ग्रीट करवाया, और बधाई हो, है ना, सीए फाउंडेशन, अब आगे क्या। तो अपने को तो बोलने ही नहीं दिया अपने पापा ने। अपने पापा ने बोला अरे चिंटू ने तो जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले 2-3 दिन में तो इसकी इंटर की क्लासेस शुरू हो गई। मतलब क्या क्या पढ़ता रहता है, अकाउंट्स पढ़ता है, लॉ पढ़ता है, ऑडिट भी सीख रहा है, इधर इसका इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब चल रहा है, कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। मतलब ये तो सर्वगुण संपन्न लड़का बनने वाला है, या लड़की बनने वाली है, दोनों चीज़ें। तो मतलब तारीफ़ तो करते ही हैं यार अपने पेरेंट्स अपनी, है ना, ओके। और ये तारीफ़ अंकल भी सुनकर काफ़ी खुश हुए, है ना। अंकल ने वापस से बोला यार चिंटू बेटा फटाफट बन जाओ तुम सीए, है ना, काम तुमको ही संभालना है, ऐसा करके तारीफ़ वारीफ़ों का दौर चला। इसके बाद अंकल ने बोला बेटा तुम कॉस्टिंग भी पढ़ रहे हो क्या?
हमने कहा हाँ अंकल, कॉस्टिंग में ये सब बताया हमें सर ने, मटेरियल, लेबर। अरे क्या बात कर रहे हो? तो यार अपनी फैक्ट्री में एक जगह पर प्रॉब्लम है। हमने कहा अंकल मतलब कहाँ प्रॉब्लम है? अंकल ने बोला आओ। तो अंकल फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का जो गोडाउन था उनका, वहाँ लेकर गए। और गोडाउन का जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, इतना ओवर स्टॉकिंग था वहाँ पर, मतलब इतना सारा रॉ मटेरियल वहाँ पर पड़ा हुआ था, इतना सारा माल वहाँ पर रखा हुआ था कि दरवाज़ा खोलते से ही 4-5 पैकेट नीचे गिर गए। उन्होंने बोला कि, हमने बोला अंकल मतलब प्रॉब्लम क्या है? बोले यार बहुत अपना मतलब लॉस में जा रही फैक्ट्री यार, तुम अपने वाले हो तो बता रहे हैं, बाहर ही बात नहीं जानी चाहिए, कॉम्पिटिटर को पता चल गया तो फिर वो अनड्यू एडवांटेज उठाएगा इस इन्फॉर्मेशन का, पर अपना लॉस में जा रहा है यार। अच्छा अपन ने भी कॉस्टिंग शुरू तो करा ही नहीं था, अभी तक तो अपना एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ था कि कॉस्टिंग कुछ है ना। अब अपने पास एक ऑप्शन तो वो था कि अंकल अभी तो कहाँ सीए बने और फिर है ना, पर पापा ने इतनी तारीफ कर दी थी अपनी कि अब आप बैकफुट पे आ ही नहीं सकते हो। अच्छा इंटेलिजेंट अपन बचपन से ही थे, पर कभी इस बात का घमंड नहीं किया। तो आपने वहीं अपना दिमाग लगाया, आपने कहा इनको लॉस क्यों हो रहा है? आपने बोला लॉस हो रहा है, सामने देख रहे हैं आप, गोडाउन का दरवाज़ा खोल रहे हो, रॉ मटेरियल सर पे आ रहा है, मतलब आपको तो लॉस होगा क्योंकि आपने ओवर स्टॉकिंग कर रखी है। मतलब अंकल आपके इसमें ऐसा भी होता होगा कि इससे पहले कि गुड्स प्रोड्यूस होने जाए आपका रॉ मटेरियल ही एक्सपायर हो जाता होगा। उन्होंने कहा हाँ यार बेटा, कई बार एक्सपायरी वाला फेंकना पड़ता है हमें, होता है ना, क्योंकि आपने ओवर स्टॉकिंग कर रखी है। अच्छा अंकल इतना सारा माल रखा हुआ है तो इसके लिए अपन ने सप्लायर को पेमेंट किया होगा? हाँ बोले वो तो कैश देना पड़ता है, तब जाकर मतलब पहले उसके खाते में पैसे जमा करो, फिर वहाँ से सप्लायर से ट्रक रवाना होता है, हमारा बिजनेस का सिस्टम ऐसा है। तो हमने कहा अंकल फिर तो बहुत सारा अपना पैसा ब्लॉक्ड है इसमें, रॉ मटेरियल में, और ये जो बहुत सारा पैसा ब्लॉक्ड है इस पर कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट कॉस्ट तो लगती है नहीं, या तो आपने बैंक से लोन ले रखा है तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, और अपने खुद का भी पैसा लगा रखा है तो अपना पैसा तो फंसा हुआ है ना बिजनेस में, कहीं ना कहीं फिर एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है, राइट। तो हमें देखा जाए तो ब्याज का भी खर्चा ज़्यादा लग रहा है। अब जब ये सारे खर्चे हम काउंट करेंगे तो वी विल स्लिप इनटू लॉसेस। तो अंकल ने बोला हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो, और फिर मतलब क्या करना चाहिए? तो हमने कहा जितना सारा हमने ओवर स्टॉकिंग कर रखा है हमें इसका स्टॉक रिड्यूस। अंकल को आपकी बात एकदम जम गई। अच्छा आप एक बात और बोलने वाले थे अभी, है ना, पर इससे पहले कि आप वो बात बोलते, हमने कहा अंकल एक और, अरे बेटा तुमने क्या बात बोली है, आप ये तो ओवर स्टॉकिंग मुझे समझ में आ गया, मैं आज ही मेरे परचेज मैनेजर को बोलूँगा कि इतनी ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी। ये बात अंकल ने परचेज मैनेजर को बोल दी। हमारे मन में एक बात और थी लेकिन वो अंकल ने हमें बोलने ही नहीं दी, और अब परचेज मैनेजर ने दोस्तों पूरा सिस्टम ही शिफ्ट कर दिया, और उसने बोला कि अब मुझे गुड्स तभी मंगवाने, रॉ मटेरियल तभी मंगवाने, इतना नीट एंड क्लीन मुझे रॉ मटेरियल का स्टोर रखना है कि मुझे रॉ मटेरियल ही तब मंगवाना है जब मुझे उसकी प्रोडक्शन में जरूरत हो। ऐसा करने से मेरा कैपिटल कम से कम ब्लॉक होगा, अब मेरा ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का कोई चक्कर ही नहीं रह जाएगा। अच्छा जितना ज़्यादा स्टॉक रखोगे आप उतना ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, उतने ज़्यादा लोग लगेंगे, और जितना कम स्टॉक रखोगे उतने कम लोगों में आपका काम हो जाएगा, उतना कम आपको स्टोरेज स्पेस लगेगा, स्पेस का भी कॉस्ट होता है। सो यू आर एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट। 2-3 महीने हो गए दोस्तों, इधर अपन भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए, इधर अंकल भी अपने बिजनेस में थे। 2-3 महीने बाद अंकल का कॉल आया पापा के फ़ोन पर, और उन्होंने बोला यार चिंटू से बात करवाना। पापा एकदम शॉक हो गए, यार फ्रेंड मेरा और बात किससे करना चाह रहा है? चिंटू से। पापा ने आपको फ़ोन दिया, और अंकल ने बोला यार बेटा वो अपन ने क्या स्टॉक तो बहुत कम कर लिया, बहुत कम अपन स्टॉक रखने लगे, लेकिन उससे एक नई समस्या खड़ी हो गई। हमने कहा अंकल उस दिन हम कुछ बोलने वाले थे पर आपने बोलने ही नहीं दिया। अंकल बोले बेटा पूरा बोलो, और जब तुम बोलोगे ना ओवर एंड आउट तो ही फ़ोन रखूँगा। तो अब आपने बोलना शुरू करा, अंकल अगर हम बहुत सारा स्टॉक रखते हैं तो प्रॉब्लम है, अगर हम बहुत कम स्टॉक रखते हैं तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप बहुत लो लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो और आपको बस प्रोडक्शन में जब ज़रूरत है तब आप ऑर्डर कर रहे हो, और तब आपने सप्लायर को कॉल किया एंड फॉर व्हाटएवर रीजन सप्लायर इज नॉट एबल टू सप्लाई यू द रॉ मटेरियल, फिर आप क्या करोगे? आपका प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा। अच्छा वर्कर्स को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, उनको तो देनी ही पड़ेगी, वो तो आ गए फैक्ट्री में, यू हैव टू पे देम सैलरी डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका रॉ मटेरियल शॉर्टेज है, प्रोडक्शन नहीं हो पाए, यू हैव टू पे देम फुल सैलरी, राइट। अच्छा इधर आप प्रोडक्शन नहीं कर पाए और कस्टमर की डिमांड है,
और आप सप्लाई नहीं कर पा रहे तो कस्टमर क्या करेगा, दूसरे गुड्स पर शिफ्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक कि आप एक कार खरीदने गए पर उस कार में वेटिंग ही 6 महीने की है, आप क्या बोलोगे, लगभग सेम वाली दूसरी कार से अगर मैं इक्वली सेटिस्फाइड हूँ तो वो खरीद ले, क्योंकि वो जल्दी मिल रही, वो सब 15 दिन में डिलीवरी मिल रही है एज कम्पेयर टू दूसरी कार जो 6 महीने लगा रही है, राइट। तो कई बार गुड्स अवेलेबल ना होने पर कंज्यूमर अपनी चॉइस बदल लेता है। जैसे कई बार होता है ना, हमें अगर पेप्सी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कोको कोला नहीं मिली तो कोई बात नहीं, थम्स अप नहीं मिले तो कोई बात नहीं, स्प्राइट, वट एवर इज अवेलेबल गेट सोल्ड, एंड इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इट विल नॉट बी सोल्ड। तो हमने कहा अंकल अगर हम बहुत सारा इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। वी हैव टू मेंटेन एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ऑप्टिमम, क्या वर्ड मैंने बोल दिया, ऑप्टिमम, जिससे वो ओवर स्टॉकिंग वाले जो डिसएडवांटेजेस थे, बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, वो भी कम हो, और एट द सेम टाइम इधर वाले जो डिसएडवांटेजेस है बहुत लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखने से कि हम कस्टमर की डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, वर्कर्स आए हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रॉ मटेरियल, वैसी भी नौबत ना आए, राइट। दोस्तों अब ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री आखिर पता कैसे करें वो हम सीखते हैं इस चैप्टर में। किसमें, मटेरियल में। अब आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। मारुति सुजुकी जब एक कार बनाता है, एक कार मारुति सुजुकी, तब एक कार के अंदर कितने कंपोनेंट्स लगते हैं, बहुत सारे। जैसे एक बाइक है, एक्टिवा है, उसके अंदर एक कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे सैकड़ों कंपोनेंट। तो कार के अंदर तो और ज़्यादा कंपोनेंट्स है। कार के अंदर 1800 कंपोनेंट्स लगते हैं। यानी मारुति सुजुकी की फैक्ट्री के अंदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितनी वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल है, 1800। मतलब उनकी क्वांटिटी अलग चीज़ है, अभी तो हर एक काउंट के पास कुछ स्टॉक होगा। तो 1800 कंपोनेंट्स की वो इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, और अगर वो ओवर स्टॉक रखें या फिर वो अंडर स्टॉक रखें तो फिर तो बन गई कार। दे हैव टू मेंटेन एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। और वो 1800 कंपोनेंट के लिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री आखिर कैसे डिसाइड किया जाता है? हर कंपोनेंट का अलग अलग होगा ऑप्टिमम लेवल। टायर्स का अलग होगा, इलेक्ट्रिकल वायर्स का अलग होगा, बल्ब का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, वट एवर, राइट। सबका अलग अलग होगा। वो कैसे डिसाइड करते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखते हैं। कॉल करा हमने सप्लायर को कि सप्लायर हमें गुड्स भेज देना, उधर से सवाल आया कितना भेजना है। जवाब हो सकता है कि 100 यूनिट्स ही भेजना, जवाब हो सकता है कि 500 यूनिट्स भेजना, और जवाब हो सकता है कि नहीं 2000 यूनिट्स भेजना। इन वन ऑर्डर, एक ऑर्डर में आप कितनी यूनिट्स मंगवाओगे इसका भी कैलकुलेशन होता है। ये जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज काम करती है अंदाज से काम नहीं करती कि एक काम करो इतना भेज देना। दे वर्क ऑन मैथमेटिक्स, दे वर्क ऑन डेटा एनालिटिक्स कि कितना मंगवाना चाहिए। वो डेटा एनालिटिक्स कि कितना मंगवाना चाहिए, 100 यूनिट सही है, 500 सही है या फिर 2000 सही है। दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कि ऑर्डर करते वक्त कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करना इज द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। वो सारी चीजें कहां पर कवर होती है? अपने मटेरियल चैप्टर में कवर होती है। ठीक है, तो वो नाम से दिख रहा है मटेरियल चैप्टर, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल निटिग्रिटीज हैं जो कि हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। इसी के साथ साथ दोस्तों जब हम गुड्स खरीदते हैं तो आपने पढ़ा ही होगा फाउंडेशन में कि सिर्फ परचेज प्राइस ही कॉस्ट नहीं होता है। परचेज प्राइस के अलावा और सारे रास्ते भर में जो खर्चे लगते हैं, दे ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ फैक्ट्री से एक वर्कर आया दौड़ा और उसने कहा कि रॉ मटेरियल के स्टोर कीपर को कहा कि मुझे 150 यूनिट्स दे दो। उधर फैक्ट्री में उस्ताद ने मंगवाई है, जो प्रोडक्शन मशीन पर बैठा हुआ है उसने 150 यूनिट्स मंगवाई है। क्या आप ऐसे उठाकर उसे दे देंगे या इसका कुछ रिकॉर्ड रखना पड़ेगा? कुछ रिकॉर्ड। और पहली बात तो प्रूफ कि उस्ताद ने 50 यूनिट्स बोला या 150, राइट। तो एक पूरा लेखा जो का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टोर्स लेजर। क्या बोलते हैं इसको? स्टोर्स लेजर। अब इस स्टोर्स लेजर को कैसे मेंटेन करना और कितना सारा वैरायटी ऑफ स्टॉक है हमारे यहाँ पर, वो भी चीज़ हम कहाँ पर सीखते हैं? अपने मटेरियल चैप्टर में। यानी हर चैप्टर के अंदर डेप्थ आएगी अभी, राइट। सेम गोज विद लेबर चैप्टर। इसके अंदर भी हम डेप्थ समझेंगे कि कंपनी में सबसे इम्पॉर्टेंट, हम एग्जाम्पल लूँगा, आप उसको यहाँ पर कोचिंग क्लास से फैकल्टी से कनेक्ट मत कर लेना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो नींव होती है वो कौन होते हैं? एम्प्लॉइज। जैसे कोचिंग के अंदर नींव क्या होता है?
फैकल्टीज, राइट। उसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल आर इंपॉर्टेंट। और आपने पढ़ा ही होगा, आपके 11th-12th के अंदर भी पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक बार एक मशीन खराब हो जाए ना तो उसे बदला जा सकता है, लेकिन अगर आपका एक की एम्प्लॉय, आपके 2 की एम्प्लॉयज़, अगर आपका एक की एम्प्लॉय दोस्तों यहाँ से वहाँ चला जाए तो फिर देयर कुड बी प्रॉब्लम्स इन द कंपनी, राइट। तो अब आप इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, राइट। सो एम्प्लॉयज़ नीड्स टू बी मोटिवेटेड ताकि वो कहाँ पर रखे जा सके, अपनी ही कंपनी में रिटेन किए जा सके। सफिशिएंट मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड। और आप जानते हैं 2 तरह का मोटिवेशन होता है, एक मॉनेटरी और दूसरा नॉन मॉनेटरी। दोस्तों क्योंकि हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो हम मॉनेटरी इंसेंटिव्स की बातें करेंगे। अब एम्प्लॉयज़ को मॉनेटरीली कैसे 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 इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, व्हाट आर द वेरियस स्कीम्स थ्रू विच वी कैन इंसेंटिवाइज अवर एम्प्लॉयज़, वो सारी स्कीम्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। मतलब मैं अमेरिका में था ना, तो वहाँ पर मैंने भी एक लगभग 4 से 5 पेज की एक मोटिवेशनल स्कीम, एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशनल स्कीम ड्रॉ की थी वहाँ पर, हमारे सेल्स पीपल को मोटिवेट करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएँ। अब उसमें क्या हुआ, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि दिल खोलकर मोटिवेशन दे दिया, नहीं तो कंपनी के पास प्रॉफिट क्या बचेगा। ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि हाथ खींचकर अपन ने तो कहा नहीं कम से कम मोटिवेट करो, एम्प्लॉय छोड़कर चला जाएगा, राइट। तो आपको यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि एक सफिशिएंट मोटिवेशन क्या है जिससे विन विन सिचुएशन क्रिएट हो फॉर बोथ एम्प्लॉय एज वेल एज कंपनी। तो इन स्कीम्स के बारे में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए ना। वो हम सीखेंगे कहाँ पर, एम्प्लॉय चैप्टर में, राइट। दोस्तों इसी के साथ आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज ओवरहेड्स, जहां पर हम अदर एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे, राइट। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट नाम से ही समझ में आ रहा है, अ शीट ऑफ पेपर इन विच वी आर गोइंग टू राइट अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अगर ये सेल फोन बन रहा है और इस सेल फोन की अगर सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करनी कंपनी को, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट कि क्या क्या जाता है इस सेल फोन को बनाने में, उसकी कॉस्ट कितनी लगती है, एंड अकॉर्डिंगली लेट अस सेट द सेलिंग प्राइस, ठीक है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, है ना। ये ओवरहेड्स का एडवांस्ड वर्जन है, ये ओवरहेड चैप्टर का एडवांस्ड वर्जन आएगा, है ना। अब मैं उतनी डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला हूँ जितने डिटेल में मैंने मटेरियल चैप्टर का दिया था। सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं कल क्या करूँगा। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। आप जानते हैं कि कंपनी में प्रोडक्शन प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, राइट। हर प्रोसेस का सेपरेट कॉस्ट रिकॉर्ड किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर सेपरेटली आपने कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर कॉस्ट किसने ज़्यादा लगाया मालूम ही नहीं चलेगा, राइट। तो इसलिए हमें ब्रेक देना पड़ता है बीच में कि ये प्रोसेस 1 की कॉस्ट है, ताकि पता चले कि प्रोसेस 1 ने कितनी कॉस्ट में अपनी प्रोसेस को कंप्लीट किया है। मान लो प्रोसेस 1 ने कॉस्ट बचा है लेकिन प्रोसेस 2 ने ज़्यादा लगाया, बट हम प्रोसेस बाय प्रोसेस कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट तो वही आएगी क्योंकि 1 ने बचाया और 2 ने ज़्यादा लगा दिया। हमें मालूम ही नहीं चलेगा ना कि कहाँ पर इनएफिशिएंसीज है फैक्ट्री एनवायरनमेंट में। तो इसलिए हम प्रोसेस बाय प्रोसेस कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। हियर कम्स इनटू पिक्चर अवर चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग, कि आखिर वो प्रोसेस बाय प्रोसेस कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड होती है। कुछ फैक्ट्री सिनेरियोज में प्रोडक्शन यूनिट बाय यूनिट होता है, कुछ फैक्ट्री सिनेरियोज में प्रोडक्शन बैच बाय बैच होता है, राइट। तो यूनिट सिनेरियो में कॉस्टिंग कैसे करना, बैचेस के एनवायरनमेंट में कॉस्टिंग कैसे करना। जैसे आपने कभी वो मेडिसिन खरीदी होगी तो उसके अंदर ना पीछे बैच भी प्रिंटेड होता है कि किस बैच में निकला हुआ मेडिसिन है ना। उसके 2 रीजंस रहते हैं, एक तो कॉस्टिंग वाला रीज़न रहता है और दूसरा वो भी रीज़न रहता है कि कल को अगर वो जो दवाई है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो और वो किसी एक पर्टिकुलर बैच में रॉ मटेरियल गलत आ गया तो उसको वो रिकॉल कर सकें, इस बैच नंबर वाले प्रोडक्ट को हम रिकॉल कर रहे हैं, राइट। तो बैच बाय बैच कॉस्टिंग कैसे करना है, यूनिट बाय यूनिट कॉस्टिंग कैसे करना, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, राइट। जॉब कॉस्टिंग। सपोज कीजिए कि आपको अपने घर में इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना है। क्या जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उसका एक फिक्स सेलिंग प्राइस होता है कि मैं तो 5 लाख रुपए में आपका इंटीरियर डिज़ाइन कर दूंगा, या वो आपकी रिक्वायरमेंट समझता है पहले, आपकी रिक्वायरमेंट, यानी यहाँ पे काम स्टैंडर्डाइज हो रहा है, कस्टमाइज हो रहा है, कस्टमाइज। तो कस्टमाइज्ड सिनेरियो में पिक्चर में आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज जॉब
कॉस्टिंग, यानी बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट इन दैट जॉब, आपको कितना उसमें काम करवाना है, अकॉर्डिंगली वहाँ पर कॉस्ट तय करना, राइट। यानी आप समझ रहे अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग कॉस्टिंग की टेक्निक लगेंगी, राइट। फिर इसके बाद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल से कितने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। अब जितने सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मैं यहाँ पे दो नाम लेता हूँ, पेट्रोल बना, एक डीजल बना। तो हम क्रूड ऑयल तो इकट्ठा एक खरीद कर लाए थे, लेकिन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स। अब उन दोनों प्रोडक्ट में से क्रूड ऑयल का कितना कॉस्ट पेट्रोल पर चार्ज किया जाए और क्रूड ऑयल का कितना प्रोपोर्शन डीजल पर चार्ज किया जाए, और सिर्फ दो नहीं, उसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट। आपने पढ़ा होगा स्कूल लाइफ में। तो ये जो कॉमन कॉस्ट है जो हमने इनकर करी है, इसको आखिर वेरियस प्रोडक्ट्स पर कैसे बांटा जाए, वो तो आना चाहिए ना, नहीं तो कॉस्टिंग कैसे हो पाएगी, राइट। तो वो जॉइंट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी कम से कम 8 तरह की टेक्निक्स होती है, वो टेक्निक्स हम यहाँ पर सीखेंगे, राइट। सारा का सारा दोस्तों प्रैक्टिकल चलने वाला है, सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है, आप बोलोगे इस चैप्टर से अपन शुरुआत कर लेंगे दोस्तों। सर्विस इंडस्ट्रीज, और सर्विस इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूंगा अभी, आप बोल दोगे कोचिंग क्लासेस व्हाट, सर्विस, सेवा ही तो है ये। अरे वाह, सेवा में ही मेवा। दोस्तों सर्विस इंडस्ट्रीज जैसे कि बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, टेलीकम्युनिकेशंस हुआ, कोचिंग क्लासेस हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और वेयर हाउसिंग हुआ, ये सारी क्या है, सर्विस इंडस्ट्रीज। क्या ये कॉस्टिंग नहीं करते हैं? ये भी कॉस्टिंग करते हैं। अब सर्विस इंडस्ट्री में जो कॉस्टिंग की टेक्निक्स होंगी वो मैन्युफैक्चरिंग से अलग होंगी, राइट। तो सर्विस इंडस्ट्रीज में कैसे कॉस्टिंग की जाती है वो हम यहाँ पर सीखेंगे, राइट। दोस्तों ये जो साल भर हम इतना सारा प्रोडक्शन करेंगे, पैसा, गुड्स आएंगे, वर्कर्स आएंगे, गुड्स का हम पेमेंट करेंगे, वर्कर्स को पेमेंट करेंगे, बाकी एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे, हमें इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। वो रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है वो हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट बुक कीपिंग सिस्टम। 1 मिनट यार, आप अकाउंट्स तो पढ़ ही रहे हो, है ना। और आपने 11th में 12th में सीए फाउंडेशन में वो बेसिक अकाउंटिंग तो पूरी सीख ही ली है। मतलब गिवन अगर मैं एक व्यापारी का आपको बोलूँ कि इनके अकाउंट्स लिखो तो आप लिख भी दोगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। एक मान लो कपड़े का व्यापारी है तो उसका परचेज, सेल, खर्चा, इतनी आप रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग आप कर लोगे, है ना। लेकिन कॉस्टिंग कहता है, कॉस्टिंग वाले कहते हैं कि ये जो अकाउंट्स वाले रिकॉर्ड रख रहे हैं ना, ये काम के नहीं है, सही में काम के नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काम में आते हैं, सरकार को बताने में। असली में जब आप कंपनी रन करते हो ना, तो जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये जो आप अकाउंट्स पढ़ते हो ना, इसको मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोल रहा हूँ। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूजलेस है, किसी काम का नहीं। टेक एन एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जब प्रोडक्ट बनाता है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे शायद पेप्सोडेंट उनका ही है, डव उनका है, पियर्स उनका है, क्लिनिक प्लस उनका है, ये बहुत सारे है ना, इतने सारे प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं, राइट। दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंटरेस्टेड होगा या नहीं ये जानने में कि हमारी प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? होगा। बताइए कौन सी क्लास में, 11th में कि 12th में, किसी ये फाउंडेशन में, किसी इंटरमीडिएट में आपको ये बताया गया है कि प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करें? नहीं बताया गया। आपके जो अकाउंट्स बनते हैं ना, वो एग्रीगेट बेसिस पर बनते हैं। सेल्स मतलब सेल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये बिका है या वो बिका है। परचेज मतलब परचेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने क्लिनिक प्लस के लिए रॉ मटेरियल खरीदा या फिर आपने डव सोप के लिए रॉ मटेरियल खरीदा या आपने पियर्स के लिए खरीदा। मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है ना, वो प्रोडक्ट वाइज नहीं होती, वो कंसोलिडेटेड होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है फाइनेंस में। वो रेवेन्यू थोड़ा सा सेगमेंट वाइज बता देते, लेकिन प्रॉफिट तो सेगमेंट वाइज बता ही नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रोडक्ट वाइज नहीं होते, कॉमन होते हैं। जैसे कि कंपनी का सीईओ का सैलरी, बताओ कौन से प्रोडक्ट के लिए लग रहा है? सबके लिए लग रहा है, राइट। तो द आंसर लाइज इन कॉस्टिंग सब्जेक्ट। कॉस्टिंग इस लेवल ऑफ डेप्थ तक जाता है कि आपको प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी लाकर बता देता है, और वही इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट के लिए। मान लीजिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के 25 ब्रांड्स है, देयर आर 25 ब्रांड्स, और हर ब्रांड उन्हें 1000 करोड़ अगर कमा कर देगा, तो 25 ब्रांड्स पर वो कितना कमा लेंगे? 25,000 करोड़। अब वापस से रिवर्स इंजीनियरिंग करवा रहा हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करा 25,000 करोड़ का। अब
कंपनी का मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि 25,000 करोड़ में से आखिर किस प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट आया। क्या हर प्रोडक्ट इक्वली प्रॉफिटेबल रहा? ऐसा तो होता ही नहीं है, कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते, कुछ कम। और अगर कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना चाहती है तो वो उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करे जिसमें हमें लॉस हो रहा है। जस्ट बाय डिसकंटिन्यूइंग अ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट्स। क्योंकि आपका अदरवाइज शायद प्रॉफिट 26,500 करोड़ रुपए था, लेकिन एक प्रोडक्ट था जो निकम्मा 1,500 करोड़ का लॉस कर रहा था। जस्ट बाय डिसकंटिन्यूइंग दैट प्रोडक्ट यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी। और कॉस्टिंग में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज डिसीजन मेकिंग, जिसमें एक डिसीजन ये भी आता है कि कौन से प्रोडक्ट्स कंटिन्यू करें, कौन से प्रोडक्ट्स हम डिसकंटिन्यू कर दे, राइट। तो अब डिसकंटिन्यू करने के लिए उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक हमें प्रॉफिट चाहिए जो कभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं दे पाता है। जो आप P&L अकाउंट भी बनाते हो ना, उसमें आप 2 सैलरी एक्सपेंसेस लिखते हो, 2 डेप्रीसिएशन लिखते हो, लेकिन आप ये नहीं लिखते हो कि 25 ब्रांड्स में से सैलरी किस ब्रांड के लिए कितनी पे करी। डेप्रीसिएशन जो मशीन का लगा है वो किस प्रोडक्ट के लिए कितना लगा है, राइट। और हियर कम्स इनटू पिक्चर द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग रेगुलेशंस में तो उतनी कंपलसरी नहीं है, मतलब कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिल से निकल के आता है। सरकार ने नहीं बोला आप कॉस्टिंग करो, सरकार ने बोला है कि आप अकाउंट्स रखो, इनकम टैक्स भरो, GST भरो, ऑडिट करवाओ, पर सरकार ने नहीं बोला कॉस्टिंग करो। ये मैनेजमेंट खुद से करता है बिकॉज इट वांट्स टू नो कि मेरी कंपनी में आखिर क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है ये अकाउंट्स नहीं बताता, ज़्यादा कौन बताता है, ये कॉस्टिंग बताता है। वो इस लेवल ऑफ डिटेल तक जाता है। इज दैट क्लियर? तो कॉस्ट बुक कीपिंग सिस्टम में हम सीखेंगे कि कॉस्टिंग में आखिर अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, राइट। दोस्तों, जैसे कि देश का फाइनेंस बजट अनाउंस होता है, वैसे ही हर कंपनी अपना बिगिनिंग ऑफ द ईयर पर एक बजट बनाती होगी या नहीं? बजट बनाती होगी, है ना। तो कंपनी में बजट कौन बनाता होगा? हम ही जैसे कुछ लोग होंगे जो कि वहाँ पर बजट बनाते हैं। और बजट बनाने की बेसिक प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले लास्ट ईयर का डेटा उठाओ, नेक्स्ट ईयर में हम क्या चेंजेस करने वाले हैं, मार्केट एनवायरनमेंट क्या है, राइट। इन सारी चीज़ों को पुट टुगेदर करके बनाया जाता है बजट। वो हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट बना लिया, कब बनाया? साल के शुरुआत में। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर एक टाइमलाइन आपके सामने आ गई। यहाँ पर बजट कब बनाया? बिगिनिंग ऑफ द ईयर पर, लेकिन एक्चुअल ऑपरेशंस हुए ड्यूरिंग द ईयर, है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर। बिजनेसमैन ये कंपेयर करना चाहता है। क्या कंपेयर करना चाहता है? कि क्या सोचा था वर्सेस क्या हुआ है। हमारा भी रिजल्ट आता है जब हम एग्जाम देते हैं, तो अपन ये कैलकुलेशन बैठा लेते हैं, यार अपने को इसमें 60 नंबर आएंगे, इसमें 65 आएंगे। दैट इज अवर बजट एस्टिमेशन। फिर आता है एक्चुअल रिजल्ट एंड देन वी कंपेयर कि यार यहाँ पर मार्क्स आखिर कम क्यों आए, या फिर ज़्यादा आए तो और ज़्यादा आखिर कैसे आ गए। और इन डिफरेंसेस को हम एनालाइज करते हैं। बिजनेस में तो एनालाइज करना पड़ता है कि अगर सोचा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 13 रुपीज़ रहेगी पर यूनिट, तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आखिर 14 रुपीज़ पर यूनिट कैसे हो गई? व्हाट आर द रीजंस? क्योंकि अगर हमने ये रीजन आइडेंटिफाई नहीं करे तो वो रीजन तो अगले साल तक चलते जाएंगे और हम कॉस्ट इनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। सो हियर कम्स इनटू पिक्चर आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो कि कंपैरिजन करता है। किसका और किसका कंपैरिजन करता है? बजट का और एक्चुअल का, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, जो वेरिएंस का एनालिसिस करता है। अपना वो स्टैटिस्टिक्स वाला वेरिएंस नहीं, वेरिएंस मतलब क्या होना था वर्सेस क्या हुआ है, राइट। इसी के साथ दोस्तों एक आखिरी चैप्टर और है हमारे सिलेबस में, मतलब आप समझ रहे हो कितने सारे चैप्टर्स हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेगा। ये था दोस्तों हमारे सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन। मैं चेक कर लेता हूँ मुझसे कोई टॉपिक छूटा तो नहीं छूटा। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में रहता है आज की तारीख में, वो ये है कि आखिर जो आप पढ़ाएंगे इतना सारा, आपने बहुत सारे चैप्टर्स हमारे सामने रख दिए, इसको आखिर कंप्लीट करवाने में समय कितना लगेगा? दोस्तों, we would need 60 lectures and 3 hours each, तो टोटल 180 आवर्स का हमारा बैच का ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें हम 100% चीज़ें कवर करेंगे, राइट दोस्तों। अब दूसरा सवाल कि सर हमें तैयारी कैसे करनी, जो आप मटेरियल देंगे वो, या फिर इसी के साथ साथ वो ICI के तरह तरह के पब्लिकेशंस निकलते हैं वो स्टडी मटेरियल एंड सो ऑन। दोस्तों
सिर्फ और सिर्फ आपको अपने नोट से ही पढ़ाई करनी है। मतलब जो मैं आपको किताब दूंगा ना वो फुल एंड फाइनल है, उसके अलावा बाहर कुछ भी नहीं है। उसके पीछे दो कारण। पहला, सर मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आईसीआई की आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम मेरे घर पे भी रखे हुए हैं, वो सबको ही इनकॉर्पोरेट करके मैंने अपने नोट्स डिज़ाइन करे हैं एंड दे आर द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। अपने नोट्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल मिलेगा, यानी जो आपका स्टडी मटेरियल है ना उसका 100% कवरेज अपने नोट्स के अंदर है, तो आपको उसको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों प्रैक्टिस मैनुअल नाम की भी एक चीज़ हुआ करती थी पहले, अब नहीं है, लेकिन उसके क्वेश्चन आज भी रेलेवेंट है, वो अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेटेड है। पास्ट एग्जाम पेपर, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, फ्यूचर एग्जाम क्वेश्चंस दोस्तों अभी जस्ट मतलब एक दिन पहले की बात है, सीए फाइनल की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ इंटर की क्लास में, लेकिन अब सब है, सब लेवल सबके सेम। फाइनल का जो अभी एएफएम का पेपर आया, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसके अंदर आईसीआई ने 3 क्वेश्चन के अंदर ये काम किया है, सीधा क्वेश्चन ना पूछते हुए उल्टा क्वेश्चन पूछा। यानी आंसर निकालते वक्त आईसीआई रेट देता था, परसेंटेज रेट, और आंसर हमसे निकलवाता था। आईसीआई ने आंसर दे दिया और बोला रिवर्स में कैलकुलेट करके बताओ कि आखिर रेट क्या रही होगी। और डिफिकल्ट होता है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने की हमारी प्रैक्टिस होती है, लेकिन रिवर्स की हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। मैं पहले से ही बोलता था कि आईसीआई कभी ना कभी किसी न किसी अटेम्प्ट में किसी न किसी रूप में आपसे रिवर्स करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि जो मैंने देख रखा है ना ट्रेंड वो ये है कि जब भी इनको थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ाना है तो अब कैसे बढ़ाएं? तो एक काम करो, घुमा के पूछ लो, उल्टा पूछ लो, रिवर्स पूछ लो, राइट। तो ये रिवर्स वाले क्वेश्चन एटसेट्रा एटसेट्रा जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, वो अपने नोट्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे डाले हुए जो कि आपका लेवल इंचअप कर देंगे। और मैं एक बात जानता हूँ कि अगर आप एक लेवल ऊपर की तैयारी करोगे तो एग्ज़ाम आपको इजी लगेगी। इस फैक्ट को आप ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि जब आप 8th क्लास में थे तब आपको 8th टफ लगती थी, पर जब आप 9th में आए और फिर आपसे बोला कि अब 8th का वापस से एग्ज़ाम दो, तो आप बोलोगे अब तो कॉन्फिडेंटली देंगे। तो अगर आप एक लेवल ऊपर की तैयारी करते हो ना, जिस एग्ज़ाम को देना है उससे एक लेवल ऊपर की तैयारी करते हो, तो एग्ज़ाम रिलेटिवली ईजी लगने लगती है। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो कहीं नहीं मिलेंगे वो अपन ने अपने नोट्स में डाल रखे हैं, वो ज़रूर करने हैं हमें। आरटीपीस, सीएमए और दूसरे फेमस ऑथर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि अभी 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं और कई बार वो सेवियर बन जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि कई बार हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर टफ आ जाए, तो फिर उस केस में एमसीक्यूज हमें बचाते हैं, राइट। अब इसके बाद हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी आखिर क्या रहेगी? तो दोस्तों सबसे पहले मैं किसी भी टॉपिक का आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनवाऊंगा, यानी मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे मैंने सपोज करूँ कि एम्प्लॉय चैप्टर शुरू करा, तो आखिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो टॉपिक से हम क्या सीखना चाहते, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएंगे। और इसके बाद ये है अपना यूएसपी, ये जो अभी पिरामिड पर है, ये अपना यूएसपी है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स। मैंने क्या किया है दोस्तों, स्कीम में आपको बता रहा हूँ, आप कॉम्पिटिटर्स को जाकर मत बताना। मैंने क्या किया, मटेरियल चैप्टर, जैसे सपोज करो मटेरियल चैप्टर है ना, मटेरियल चैप्टर के आईसीआई के आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए, मान लीजिए कि 125 क्वेश्चंस आए, 125 क्वेश्चंस आए, तो मैंने सबसे पहले उन क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर दिया कि ये वो 8 क्वेश्चन है जो एक ही जाति बिरादरी के हैं, इनको इधर रखो। ये वो 15 क्वेश्चंस है जो एक ही टोन के हैं, इनको इस तरफ रखो, एंड सो ऑन। आई कैटेगराइज दोस क्वेश्चंस। फिर वो जो 8 क्वेश्चन जो मैंने पाए जो एक दूसरे के जैसे हैं, मतलब एकदम सेम नहीं है, डिफरेंसेस है थोड़े थोड़े, राइट। मैंने उन 8 क्वेश्चन को मर्ज करके एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल बनाया। क्या फ़ायदा हुआ? ये फ़ायदा हुआ कि एक एग्जाम्पल कवर करने से हमारे 8 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए, और ऐसे करके मैंने हर चैप्टर में 2-3-4 5 कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स बना रखे हैं। यानी अपने अगर 15 चैप्टर्स है और उन 15 चैप्टर्स के अगर मैं आपको 50 कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स में ही सिलेबस कवर है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर ऑफ द पिरामिड होती है वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ
क्वेश्चंस। यानी इसके बाद हम हमारी किताबें खोलते हैं, नोट्स खोलते हैं और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और वो अब मैं क्लास में आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपसे होना चाहिए। यानी हमारा जो लर्निंग का मेथड है वो क्वेश्चन से लर्निंग नहीं है, लर्निंग से क्वेश्चन हम एड्रेस कर पाए, हमारा स्टाइल वो है। और वो लर्निंग हम सारी की सारी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल, हर चैप्टर पे अपने पास कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है, वो अपन ने ऐसे डिज़ाइन कर रखे हैं कि एक ही एग्जाम्पल में मल्टीपल क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, राइट दोस्त। अब इसके बाद आता है कन्फ्यूजन। आपने क्योंकि सीए फाउंडेशन पास कर रखा है तो आपको पता है कि आखिरी दिन, जो एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले जो आपको छुट्टी मिलती है, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। मतलब अपन एक यहाँ पर एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं, सीए फाउंडेशन का वन ऑफ द पेपर होता है इकोनॉमिक्स, है ना। ओके, इकोनॉमिक्स में मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपका 50 से 60 के बीच में स्कोर रहा, सपोज ऐसे मैंने नंबर ले, नहीं इको में तो ज़्यादा आते हैं, हाँ इको में तो आपको ज़्यादा आते हैं। सपोज करो 70 मार्क्स, चलो 70 मार्क्स आपका स्कोर रहा किस में, इकोनॉमिक्स में, है ना। आपने पेपर देने से पहले पढ़ाई करी थी, मतलब एक दिन पहले आपने पढ़ाई करी थी 7-8 घंटे, ज़्यादा 10 से 12 घंटे। अच्छा, उसके पहले वाला पेपर देकर आकर भी 2-4-5 घंटे उस दिन भी पढ़ाई करी होगी, अगले दिन पूरी पढ़ाई करी और उसके अगले दिन भी थोड़ा सा एक क्विक रिविजन करा होगा, तब जाकर आपको कितने मार्क्स आए, 70 मार्क्स। फ्लैशबैक में आइए आज से कुछ समय पहले, और अब आपका पिछला वाला पेपर ख़त्म हुआ, 5 बजे पेपर छूटा, आप 6 बजे घर पर आए, आपने अपना बैग फेंक दिया और आपने एक वेब सीरीज़ लगा ली, आपने 2-4 एपिसोड उसके निपटाए, आप आराम से सो गए 8-10 घंटे। अगले दिन आपने उस वेब सीरीज़ को कंप्लीट करा, उसका अगला सीज़न भी आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया, और अब उसके अगले दिन सुबह उठकर जिस दिन पेपर है आपने बचा हुए एपिसोड्स भी ख़त्म कर दिए, और अब आप इकोनॉमिक्स का पेपर देने जा रहे हो। विच मीन्स आपने पढ़ाई करी इको की, या कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी उन 1.5 डेज़ में आपने पढ़ाई नहीं करी। अब बताइए अब आपको 70 आएंगे क्या? चलो अब बताओ आप कितने आएंगे, जिसको 70 आए थे वो अब बताओ कि अब उसको कितने आएंगे, 25, 30, 35, 40 के आसपास, 40 मान लो। हाँ, मतलब आज आपको रियलाइज हुआ हाउ इम्पॉर्टेंट योर लास्ट डे इज। 70 में से 30 जो आए हैं आपको, वो तो सिर्फ और सिर्फ आखिरी दिन के रिवीजन पर। तो आखिरी दिन का रिवीजन हुआ ना बहुत इंपॉर्टेंट, यानी आखिरी दिन का रिवीजन अगर मिसमैनेज्ड हो गया, मिसप्लान्ड हो गया, तो फिर गया हमारा तो स्कोर। जो हम इधर ख्वाब देख रहे कि मैं 100 में से 100 लाऊंगा, उसके लिए आपका आखिरी दिन का सुधरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका आखिरी दिन ठीक नहीं रहा ना, कॉस्टिंग के पेपर के जो पहले 1.5 डेज होते हैं, अगर वो आपके ठीक नहीं रहे, वो मिसमैनेज हो गए, और हुआ था आपके साथ शायद सीए फाउंडेशन में ऐसा हुआ था कि आप रिवीजन कर रहे थे और कुछ कुछ चैप्टर आपको छोड़ने पड़ेगी, अब तो रिवीजन करने का टाइम ही नहीं है। या ऐसा भी हो गया अकाउंट्स के, अब ये वाले चैप्टर छोड़ दे, ये वाले क्वेश्चन छोड़ दे, जाने दे, आएगा तब देखेंगे, ऐसा हुआ था क्या? दैट इज मिस प्लानिंग। वो हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आपका लेवल कंपटीशन का बढ़ गया है, हमारे टारगेट बढ़ गए, हमारा टारगेट है 100 में से 100, तो आखिरी दिन मुझे एज पर प्लानिंग चाहिए। यानी आखिरी दिन की एक स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए कि इफ़ देयर आर 15 चैप्टर्स इन कॉस्टिंग, तो मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर को आखिर कितना टाइम दूँ। मान लीजिए एक चैप्टर के लिए मेरे पास एलोकेशन है 1 आवर का, तो अब उस 1 आवर के अंदर ऐसा नहीं कि मैंने किताबें खोली और जितना कर पा रहा है कर ले, हाँ जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो कर लें, हाँ ऐसा नहीं। ऐसा हुआ तो मिस प्लानिंग हो गई। कैसे लाओगे आप 100 में से 100? 100 में से 100 लाने के लिए उस 1 घंटे में नहीं, पहले तो मालूम होना चाहिए कि 15 चैप्टर में हर चैप्टर को कितना समय देना, और जिस चैप्टर को जितना समय देना उतने समय में मुझे कवर क्या करना है। तुमको थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। मैंने ये प्लान आपके लिए बना रखा है कि किस चैप्टर को कितना टाइम अलोकेट करना है, और इस चैप्टर के अंदर आपको क्या रिवाइज करना है वो मैं ही बताऊंगा। उस चैप्टर के अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, कॉन्सेप्ट की मैं आपको एक बुकलेट ही दूंगा, उसके अंदर कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं और सारे कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिया, सारे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो 100% रिवीजन होना मांगता है आखिरी दिन, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। इसके बाद एक चैप्टर के अंदर 40 क्वेश्चन है,
और स्टूडेंट के लिए लगभग काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सा होता है कि वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से क्वेश्चन आखिरी दिन रिवाइज करने हैं, और अगर वो आइडेंटिफाई भी कर लेता है तो वो टाइम को एक्सीड कर जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आइडेंटिफाई करता है कि 40 में से 12 क्वेश्चन करने हैं। 12 क्वेश्चन करोगे कैसे आप आधे घंटे में? क्वेश्चन भी बड़े बड़े होते हैं, कभी एक पेज का एक क्वेश्चन होता है, राइट? तो मैंने दोस्तों आपको आखिरी दिन क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, क्या क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, वो मैंने प्री प्लान कर रखा है। दिस आर द क्वेश्चंस यू हैव टू रिवाइज ऑन द लास्ट डे। और एक खास बात, मैंने ऐसा भी करा है कि ये 3 क्वेश्चंस हैं, पर तीनों क्वेश्चन है तो सेम टोन पर, लेकिन तीनों में कुछ कुछ अलग चीज़ है। मैंने उन 3 क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया, जिसमें एक क्वेश्चन को बेस बनाया और बचे हुए 2 क्वेश्चन के जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट थे वो इसके अंदर डाल दिए। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ? 3 क्वेश्चन रिवाइज करते आपको 30 मिनट लगते, एक क्वेश्चन के अंदर तीनों क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, टाइम भी बचा, कॉन्सेप्ट भी पूरा का पूरा रिवाइज है। दैट इज इंपॉर्टेंट, आप जानते हो, क्योंकि जो चीज़ें आपसे आखिरी दिन रिवाइज नहीं हो पाती वो एग्जाम में ही नहीं हो पाती। अरे जैसे DT हुआ, डायरेक्ट टैक्स तो आप में से बहुत सारों ने पढ़ लिया ना। अब आपको मालूम है कि आपने सैलरी चैप्टर पढ़े हुए आपको वक्त हो गया, अब आपसे कोई सैलरी का टेस्ट ले ले, आप दे पाओगे क्या? नहीं, तो आपको तो सब कुछ रिवाइज करना है। अब सब कुछ रिवाइज करने में क्या रिवाइज करना है, कितने समय में रिवाइज करना है, वो साइंटिफिकली मैंने डिजाइन कर रखा है। दैट इज अवर लास्ट रिविजन प्लानिंग। दोस्तों एक और बात, कभी तो आपको ऐसा अफसोस हुआ होगा जैसे ही आप एग्जाम से 5 बजे छूटे, फाउंडेशन भी 5 बजे खत्म होती है ना, हाँ, 5 बजे आप छूटे, पेपर आपके हाथ में है, आपके फ्रेंड ने आपको एक बात बोली, आपने कहा अरे यार इसमें ये था क्या? ऐसा हुआ है? इसे हम कहते हैं कॉमन पिटफॉल्स। कॉमन पिटफॉल्स, आम गलतियां। पढ़ा कर मुझे ऐसा समझ में आने लगा है कि बच्चे कहाँ पर गलती करेंगे, और वो पैटर्न ऑफ मिस्टेक इज कॉमन अक्रॉस द स्टूडेंट्स। तो मैं जो आपको कॉन्सेप्ट के नोट्स दूंगा उसके अंदर हर चैप्टर में, हर एरिया में लिखा हुआ है कि यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, ये वाली मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन घुमा सकता है, इसको ऐसे डील करना है। अब आप एक बात बताओ, जब आपको किसी ने यही बता दिया है कि एग्जाम में ये वो 25 जगह हैं जहाँ पर गलती होती है, और वो आपके पास छपा हुआ है, लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है वो आखिरी दिन भी आप पढ़कर जा रहे हो, तो अब आपसे वो मिस्टेक नहीं होगी। और बस जो आप CA फाउंडेशन से पास होकर इंटर में आए हो और जो आपका फ्रेंड फाउंडेशन में रह गया, दोनों के नॉलेज लेवल में कोई खास डिफरेंस नहीं। आप मानते हो इस बात को ना? आपके साथ ही आप पास हुए और आपके साथ ही आपका कोई दोस्त होगा जो फेल हुआ, तो नॉलेज में क्या कोई बहुत मेजर डिफरेंस था या माइनर सा डिफरेंस था? माइनर सा डिफरेंस था। जो भी बच्चा CA इंटर की एग्जाम देने आपको जाएगा ना, आपको वहाँ आपके एग्जाम सेंटर में 1000 बच्चे एग्जाम देते हुए मिलेंगे। 1000 में से ऐसा नहीं होगा कि 500-700 तो सिर्फ टाइम पास करने, हर कोई पूरी तैयारी करके आया है। हर किसी ने अपना जोर लगाया है, हर किसी ने सारे चैप्टर पढ़े, सारे क्वेश्चन करे, सारा रिवीजन करा है। लेकिन उन 3 घंटों में अगर आपने वो कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड कर दी, और वो बच्चा नहीं कर पाया कॉमन मिस्टेक अवॉइड, तो गए उसके तो 5-7 नंबर। और CA के एग्जाम में पास फेल का फासला ही क्या होता है? यही तो होता है, बस 5-7 नंबर। आप खुद ही अपने फाउंडेशन के मार्क्स देख लो, कोई बहुत बॉर्डर लाइन से ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमें अगर 400 में से 200 चाहिए तो हम 350 लाएं, हम 300 लाएं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ पास होते हैं? बॉर्डर लाइन के पास। और उससे ज़्यादा बड़ी बात, जो फेल होते हैं 200 लाने, ऐसा थोड़ी होता है कि 70-80 लाया। जो फेल होते हैं वो कहाँ जाके फेल होते हैं? 200 लाने थे और 180 है, 185, 190 है, 197 है, 194 है, ये है ना। तो पास या फेल में फासला ही क्या है? 5-7-10 नंबर का। और वो 5-7-10 नंबर यही सिली मिस्टेक जो हम एग्जाम में करके आ जाते हैं ना, वही होती है। और ध्यान रखना, स्कूल की चेकिंग अलग तरीके से होती है, ICAI अलग ढंग से चेक करता है। स्कूल में अगर एक क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का और आपने उसको सॉल्व किया, लेकिन आपने फॉर्मूला में एक डेटा डालने में एरर कर दिया, तो स्कूल की टीचर मालूम है क्या करते हैं? फॉर्मूला बच्चे ने करेक्ट लिखा, इसको 2 मार्क्स दो, बाकी इसने सब कुछ सॉल्व किया, इसकी प्रोसेस सही है, बस एक डेटा गलत है, इसके एक काम करो 3-4 नंबर कट कर लो। 8 मार्क में से फिर भी 4 नंबर तो मैडम दे ही देती है ना। CA इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता है। CA इंस्टीट्यूट में वो बोलते हैं कि यहाँ हर एक गलती की सज़ा मौत है। यहाँ पर आपने एक गलती कर दी ना, डेटा फिट करने में ही गलती कर दी, मतलब मान लीजिए आपको 5% रखना था और आपने 5 की जगह 6% रख दिया,
बाकी सब सही है, आपकी पूरी प्रोसेस सही है, 0 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे, 0। ये होती है आईसीएआई की चेकिंग प्रोसेस। दे डोंट गो बाय हाउ यू हैव डन द क्वेश्चन, दे सिंपली गो बाय द आउटपुट। क्या आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करा उससे जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो करेक्ट जनरेट हुआ है क्या? अगर हाँ तो मार्क्स, नहीं तो 0। स्टेप मार्किंग भी होती है और स्टेप का भी आउटपुट करेक्ट आना चाहिए। अगर पहली स्टेप का इनपुट गलत हो गया, जिससे पहली स्टेप का आउटपुट गलत हो गया, और पहली स्टेप के आउटपुट बना दूसरी स्टेप का इनपुट और दूसरी स्टेप भी गलत, तीसरी भी, आपने स्टेप्स करेक्ट लगाई है, प्रोसेस आपकी सही है, लेकिन एक इनपुट गलत हो गया तो फिर गए आपके पूरे 8 में से 8 नंबर यहाँ पर जाते हैं। तो ये सिली मिस्टेक्स अगर आपने अवॉइड कर दी तो आपके 5 to 7 मार्क्स एग्जाम में बढ़ जाएंगे, और यही पास और फेल का फासला है। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने उस कॉन्सेप्ट बुकलेट के अंदर आपको प्रोवाइड की हुई है, राइट। सो वी आर गोइंग टू LDR लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट डे रिवीजन। आपका प्लान मेरे पास तैयार है, मैं जैसा बोलूँगा वैसा आपको करना है, फिर आपको थोड़ा सा उसमें कस्टमाइजेशन करना हो तो कर लेना। मैंने मेरी तरफ से एक बढ़िया सा प्लान आपके लिए सेट कर रखा है साइंटिफिक तरीके से, कि बच्चे के पास कितना समय है, किस चैप्टर को कितना अलोकेट करना है और चैप्टर के अंदर उसको क्या क्या पढ़ना है, राइट। दोस्तों यहाँ पर 2 कॉपीज़ होती हैं हमारी। सबसे पहली होती है कॉन्सेप्ट नोटबुक और दूसरी होती है सॉल्यूशंस कॉपी। कॉन्सेप्ट नोटबुक मैं आपको प्री प्रिंटेड प्रोवाइड करूँगा और सॉल्यूशंस कॉपी हम क्लास के अंदर बनाएंगे। इस कॉन्सेप्ट नोटबुक के अंदर कॉन्सेप्ट्स होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स होंगे, कॉमन पिटफॉल्स होंगे, जो आप कॉमन मिस्टेक्स करते होंगे वो होंगी चीज़ें, राइट। और फिर जो अपने क्वेश्चंस होंगे, जो हम स्टडी मटेरियल के RTPs एक्सेट्रा के क्वेश्चन करेंगे, वो हम कहाँ पर लिखेंगे? सॉल्यूशंस कॉपी में लिखेंगे, राइट। दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा पढ़ने का तरीका। अब ये हुआ हमारा यहाँ पर कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। आपके कुछ सवाल थे, आप कुछ पूछना चाह रहे थे मटेरियल चैप्टर का, जब मैंने जिक्र किया था तो आप बोले थे कुछ। अच्छा वो उठा, ठीक है ठीक है। तो और कुछ आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? शायद नहीं। आपका कोई सवाल है मुझसे? चलिए दोस्तों, तो ये हमारा कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम ब्रेक लेंगे और इसके बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। किसी चैप्टर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। ओके, आज के लिए बस इतना ही।